So we were discussing in the last session about the constructor function, okay, and we'll be taking our discussion forward, okay. So let's just see if someone is joining. Else we can begin in a minute. Sure. Yeah. So I just have a quick question. Hmm. What can I call you, like Sudendra or Singh or Oh, okay. You can call Sudhendra. That is fine. Sudendra? Yeah. Okay, cool. Yeah. So like, मेरा question ये है कि Mm-hmm. I wanted to be a front end engineer. So just like Mm-hmm. React सीखना था मेरे को, Mm-hmm. but JavaScript is quite okay. So ठीक है. how is React like? I don't even have a touch over React. I don't even know what React is like. Hmm. So, ठीक है. So like most of the student ask this question. So like फंडा ये कि if you want to be the front end developer, so आपको ये बात follow करनी है like HTML, CSS, JavaScript, then you can jump to React JS and Redux. ठीक है. So you can skip the backend part. Okay. Okay. Like if you want to totally focus on the front end part. ठीक है. So जब आप उससे comfortable हो जाओ, then you can switch to backend if you're interested. Yeah, yeah, exactly. So that would be the flow. ठीक है. So we are lucky on the sense कि all these three things, React, Redux या फिर front end or back end, so everything requires JavaScript. So that part is done at least. Okay, so we are good. Right. Hi Adesh. Yeah, I Sudendra. Hi. All right. So ठीक है. Just a quick overview. So what we are doing in the last session. So being object oriented programming language, so it becomes a like it's a necessity that we have objects. Now how to create objects? तो object की simple syntax is this one. ठीक है. तो ये तो हमने देखा था कि we can create an object like this. But the point was, what if we want to do some modeling या फिर modeling means database से related and something kind of, so more than one type of objects you want to create. So either you choose this kind of function जो कि एक ऐसा object बनाता है and it returns that object. That is one thing. So you can create as many students as you want. The same thing is applies to backend models or schema also. So if you just have a little bit of SQL knowledge या फिर you can just imagine that table में कैसे data store होता है. So there are lots of record similar fields के according. Okay, तो कुछ इस तरीके से. So that is why we will be needing array of objects या फिर ढेर सारे objects चाहिए क्यों. So that is a question. So फिर ये तरीका. Otherwise there is something constructor function. ठीक है. So this we created a constructor function. We said that कि instead of doing something like this, creating your own object, here we are instructing that ठीक है एक object create करो उसको return करो every time there is a function call. But we can leverage the feature that कि execution context of a function has three things जिसमें एक this keyword है. This point करता है. So this point करता है किसको? Current. करंट ऑब्जेक्ट को. ठीक है. सो करंट ऑब्जेक्ट को दिस पॉइंट करता है. इट मीन्स दैट अच्छा जब भी आप न्यू बोलते हो, सो वेन एवर यू से न्यू, सो बेसिकली यू आर कमांडिंग दैट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट. तो आप न्यू कीवर्ड से इंस्ट्रक्ट करते हो कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ. एंड व्हेन यू कॉल दिस, तो ये जो दिस है ना, इसी न्यू से बने हुए ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है. दैट इज वाई दिस कोड विल वर्क. तो आपको एक्सप्लिसिटली यू डू नॉट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट है. आप प्रॉपर्टीज को असाइन कर सकते हो, फंक्शंस को असाइन करते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं यहाँ पे. All right. So these are the two ways. ठीक है. So either you go with this traditional object method या फिर आप constructor function के method से जा सकते हो. But remember कि since this is pointing to current object, तो फिर आप डायरेक्ट फंक्शन कॉल नहीं कर सकते. आपको न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा. व्हेन यू से न्यू, सो यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट. ठीक है. और ये स्टूडेंट न्यू का जो दिस है वो इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है एंड इट विल असाइन द नेम, क्लास एंड ऑल दीज वैल्यूज टू द ऑब्जेक्ट और आपको एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा. सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू डू. अदर देन दैट, सो दिस इज ऑब्जेक्ट टू. ठीक है. सो वी क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस कि here's द फंक्शन. ठीक है. सो यू हैव दिस एंड दिस इज द फंक्शंस यू आर हैविंग. सो बेसिकली की मेथड और प्रॉपर्टी. सो क्लास, अब अच्छा क्लास की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? सो व्हाई वी डिडंट नीड क्लास?
class is needed to have data members and member function. तो but objects are so powerful in JavaScript, वो कह रहे कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए, देन यू राइट दिस, एंड इफ यू वांट अ मेथड आप सीधा फंक्शन लिखो. सो यू नॉट नीड एक्सप्लिसिट क्लासेस, ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है. सो यू ऑलरेडी हैव दिस एवरीथिंग ओवर. तो कुछ ऐसा सीन है. नाउ एक्सटेंडिंग दिस नॉलेज फर्दर, there is one optimization we are going to do, and that is a very good concept in case of JavaScript. So we are going to learn something about prototype. How many of you know about prototype? Okay, let's see this. So there is something unoptimized thing, unoptimized situation क्या है वो देखते हैं. Let me open the file first. So it's student three, ठीक है. तो student new, so this is the function. So the unoptimized thing is कि whatever objects are formed, ठीक है. So जितने भी objects इसकी help से बने, just a second. So student three, ठीक है, and student four, ठीक है. So जितने भी objects बन रहे हैं, they have a copy of get name function, ठीक है. So the problem is क्लास रोल नंबर नेम, ठीक है, एवरी स्टूडेंट कैन हैव डिफरेंट, वो तो ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड. बट ये फंक्शन बार बार कॉपी हो रही है. What is the issue? So suppose that there are records of 10,000 student. So is this good कि 10,000 कॉपी बने इस फंक्शन की? What do you guys think? It's an unoptimized thing, right? Yeah, Okay. memory waste होगा. ठीक है, मेमोरी वेस्ट होगा. सो दिस इज अनऑप्टिमाइज्ड बिकॉज सेम फंक्शन बॉडी. सो व्हाई डू ऑल ऑब्जेक्ट्स कैरी दिस फंक्शन? सो दैट इज टोटली अनऑप्टिमाइज्ड सिचुएशन. हियर इज वेयर प्रोटोटाइप्स कम्स इनटू पिक्चर. ठीक है, सो यहीं पे प्रोटोटाइप्स पिक्चर में आ रहे हैं. नाउ एनी ऑब्जेक्ट्स, सो वेन एवर यू क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है, सो जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो उसका एक प्रोटोटाइप एग्जिस्ट करता है. ठीक है, व्हाट इज अ प्रोटोटाइप? सो प्रोटोटाइप इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट which exist for every object created in JavaScript, every function, every array. So जितने भी arrays हैं, functions हैं, so array की prototype होती है, function prototype होती है, and object prototype होती है. Whatever you have created, जितने भी objects अभी तक create किए हैं, सबके पास एक prototype का object होता है. And you can see here. Okay, do you guys see this one? ठीक है, सो वी डिडेंट ऐड दिस. ठीक है, वी डिडेंट ऐड दिस वन, हमने ये ऐड नहीं करा है, बट दिस इज बीइंग ओवर लाइक फॉर एवरी ऑब्जेक्ट्स वी हैव क्रिएटेड टिल नाउ. इनफैक्ट अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ ना, obj is equals to something like this, so this is also having its prototype. ठीक है, अगर आप इसको ओपन करोगे तो you'll see this prototype. ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ प्रोटोटाइप. सो दिस इज ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप. ठीक है, दिस इज फंक्शंस प्रोटोटाइप. ठीक है, ये फंक्शंस के प्रोटोटाइप है. फंक्शन प्रोटोटाइप और एरे बनाओगे तो एरे की प्रोटोटाइप आएगी. ठीक है, क्यों है, दैट इज द क्वेश्चन. सो व्हाई इट इज प्रेजेंट, दैट इज द क्वेश्चन. लेट्स ओपन दिस वन. सो वी कैन सी दैट whatever values we use, ठीक है, so everything is present. Remember object dot assign method and all these methods. ठीक है, object dot assign method से नया ऑब्जेक्ट बनाते थे and those kind of things. So where are this function coming from? For example, मैं okay, let me show you something. So this is obj normal object. ठीक है, you can see all these functions. ठीक है, तो ये सारे functions आ कहाँ से? इस object पे तो मैंने अभी कुछ करा ही नहीं है. This is empty. So where I am going, like where, how can I, how I'm getting this property? ये तो खाली है. ठीक है, so this is possible because of a default object present with all the objects in over here. ठीक है, so सारे ऑब्जेक्ट्स के पास अपना एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है विच कंटेन्स स्पेशल मेथड्स एंड प्रॉपर्टी, जो कि स्पेशल मेथड और प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप. नाउ हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इन ऑप्टिमाइजेशन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है. सो लेट्स सी दिस वन. So since now I know that student new will also have its prototype because it's a function, okay, and I know that functions has prototype, so I'll comment this part. Okay, so I can simply say that student new. Okay, so how do I access the prototype? So for functions it's relatively simple. You can just put prototype. Okay, for functions, just for functions. For objects the syntax is different. We'll check that also. So for having the prototype, accessing prototype, you do dot prototype and all is good. You can assign a function. So let's say this is get name function. Let's create a function get roll number. Okay, so get roll number, and
Nothing changes. You can copy and paste, totally normal, and you can say that this dot roll and okay, and you will get the thing. So this is how it functions. Okay, so prototype. Okay, what was the definition I gave? So prototype is an special objects which exist on all objects, function, arrays. Okay, arrays, object, array, everything, like both are the same thing. ठीक है, तो function पे exist करते हैं object पे. So you can use this object to have a property get roll number and you can assign it a function. Okay, how does this going to help? Let's see. So two objects are already graded, student 3, student 4. Okay, now as they have the assign methods inside them, ठीक है, तो उसी तरीके से student new will have it, be having this get roll number thing. See this guys, just a quick refresh and we are done. So student 3. Okay, so you see that we do not have a function. So if I just open this again, ठीक है, हमारे हमारे पास यहाँ function नहीं है, ठीक है, get roll number का. But here's the magic. Student 3 dot get roll number and call this and you will get the roll number. No direct methods, ठीक है, कोई direct methods नहीं है, but I am still able to access the get roll number functions because get roll number functions कहाँ पे हैं? प्रोटोटाइप में. Yes. So prototype में methods हैं and that is why I'm able to access. Good thing is there's no copy of this methods created. ठीक है, single copy है. ठीक है, and that is working totally fine. Just a quick representation. ठीक है. Okay, let's talk two more things. Then we'll move to practical. Let me connect to Bluetooth. Just a second, guys. Okay, this is connected. ठीक है, सो दिस इज वन प्रोटोटाइप. सो ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो वी व्हाट वी सॉ इज फंक्शन प्रोटोटाइप. हमने भी फंक्शन प्रोटोटाइप देखा, ठीक है. सो दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप और हर ऑब्जेक्ट्स के पास भी प्रोटोटाइप होती है. सो दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. अभी अभी दीज आर टू सेम थिंग्स, ठीक है. बट जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, लाइक विच इज नॉट बाई दिस स्टूडेंट न्यू मैथड, हम सिर्फ कर्ली बेसिस से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और स्टूडेंट न्यू से. तो हमने दो दो वे से ऑब्जेक्ट बना के देखा, ठीक है. तो दिस इज प्रोटोटाइप ऑफ दिस फंक्शन. Okay, what is the next part? So the point is कि student new, so how to access prototype from function वो तो हमने देख लिया, but how to access prototype from this student 4, this is a question. See, these are two different things, ठीक है. स्टूडेंट फंक्शन से प्रोटोटाइप एक्सेस किया है मैंने, अब मैं उस स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट से प्रोटोटाइप एक्सेस करने जा रहा हूँ. सो दिस टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. How can I access with that? So can I say dot prototype? No, I cannot say prototype because student 4 is not a function. Student 4 is a ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. ठीक है, करेक्ट, वेरी करेक्ट. सो ऑब्जेक्ट्स के पास होती है एक थोड़ी सी अजीब टाइप की प्रॉपर्टी विच वी कॉल एज अ डंडर प्रोटो. इसको डंडर प्रोटो बोलते हैं, अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर, ठीक है, विच इज नॉट यूज नाउ डेज. ठीक है, देखेंगे व्हाट इज द अल्टरनेटिव. बट कुछ इस तरीके से आप प्रोटोटाइप को एक्सेस कर सकते हो. जैसे आप प्रोटो बोलते हो तो यू सी दिस रोल नंबर फंक्शन, हम इसी को ढूंढ रहे थे, राइट. सी, सो वी हैव Yeah. दिस, ठीक है. सो वी हैव दिस फंक्शन एंड स्टूडेंट 4 का प्रोटोटाइप एंड स्टूडेंट न्यू का प्रोटोटाइप, इस ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप एंड दिस फंक्शंस प्रोटोटाइप आर द सेम थिंग. ठीक है, सो दीज आर द सेम थिंग. सो स्टूडेंट न्यू, ठीक है, स्टूडेंट न्यू डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है. सो बोथ आर द सेम थिंग. मेक सेंस गाइस? ठीक है. ये पॉइंट रिपीट करो. ये पॉइंट स्टूडेंट 4 ये. ओके, सो just a second. So this is function, ठीक है. So this is constructor function, ठीक है. And so this is function. Whenever you create this function, so जब भी आप function बनाते हो तो this prototype also exist, ठीक है. Prototype exist. What is prototype? Object, ठीक है, with properties and methods inside. ये रहा function, ये रहा prototype. इस फंक्शन की हेल्प से, ठीक है, मैंने बनाया. सो दिस इज स्टूडेंट फंक्शन, मैंने स्टूडेंट 1 बनाया, स्टूडेंट 2 बनाया, ठीक है. सो
दिस फंक्शन गेव मी द प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज और मेथड दिए इसने स्टूडेंट को, बट स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टी की स्टूडेंट टू पे जो प्रोटोटाइप का रेफरेंस होता है वो इसका होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन है। तो फंक्शन की प्रोटोटाइप ये इसकी प्रॉपर्टी है, इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस इज नॉट इनहेरिटिंग समथिंग फ्रॉम प्रोटोटाइप, इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है प्रोटोटाइप, बट दीज ऑब्जेक्ट्स आर इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर प्रोटोटाइप। तो कुछ ऐसे है। सो दिस स्टूडेंट वन, सो हाउ टू रीच हियर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यू कैन से अंडर प्रोटो, ठीक है। बट इफ यू आर हियर, सो हाउ टू रीच हियर, एस टी डॉट, Prototype. ठीक है, मेक सेंस। Makes sense. ओके, सो ये सारे ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सबके प्रोटोटाइप्स क्या होंगे, सेम। Objects होंगे. हाँ, ओके, ऑब्जेक्ट्स होंगे और सेम पॉइंट करेंगे, राइट। Yeah, same point. Right. दैट इज वाई ये हमारा डिफरेंट मेथड्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इंस्टेड में गेट रोल नंबर यहाँ लिखूँ, मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ लिख दूंगा तो ये सारे के सारे इसको पॉइंट कर ही रहे हैं, तो ये इनको इनहेरिट करा देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस, प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे हम मेरे पेरेंट और डेराइव्ड, सॉरी, पेरेंट और चाइल्ड क्लास में होता था, तो इफ सम मेथड इज नॉट फाउंड हियर, इट विल सर्च इन द पेरेंट क्लास, ठीक है। Yeah. ओके, सो कुछ ऐसा ही सीन है। तो बोला कि गेट रोल नंबर तो है नहीं इसमें, सो वेर इट इज गेटिंग फ्रॉम, सो इट इज गेटिंग फ्रॉम प्रोटोटाइप। भाई प्रोटोटाइप किसने सेट करी, तो हम ही ने सेट करी थी थोड़ी देर पहले। ओके, सो सेकेंड पार्ट, वी कैन चेंज द प्रोटोटाइप वैल्यू एट रन टाइम। आप ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी प्रोटोटाइप को बदल सकते हो, ठीक है। सो प्रोटोटाइप की वैल्यू बदल सकते हो, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोटोटाइप आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि द फंक्शंस प्रोटोटाइप, आपने फंक्शन की प्रोटोटाइप चेंज कर दी, ठीक है, दिस द न्यू प्रोटोटाइप, ये पुराना प्रोटोटाइप था, ये नया प्रोटोटाइप था। बट जो पुराने ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, वो पुराने प्रोटोटाइप को रेफर करेंगे और नया प्रोटोटाइप इस नए को रेफर करेगा। ये थोड़ा सा मतलब चिल है, इफ यू आर गेटिंग दिस, अदरवाइज इट्स टोटली फाइन। नहीं नहीं ये how did we create this new prototype? I mean like हाँ हाँ, ठीक है, प्रोटोटाइप इज एन, for ओके, every function there is a prototype automatically created, right? सही बात है, बिल्कुल So सही। what is तो ये क्या नया concept है? I mean like what is this new prototype, old prototype? I ठीक है, didn't get that part. ऑल राइट, सी, दिस इज अ न्यू प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप इज एन ऑब्जेक्ट, राइट, Yeah, it's an object. ठीक है। सी, आई हैव चेंज द प्रोटोटाइप ऑफ स्टूडेंट नेम, सिंपल, ठीक है। इसके बाद जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सबके पास खाली प्रोटोटाइप होगा। आर यू, लाइक, आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? Just one second. Student new dot prototype मतलब ये नया prototype है. Student new dot prototype वो वाला नहीं है. I mean like हाँ, uh, यस, दिस इज ऑटोमेटिक वन, जो ऑटोमेटिक मिला हमें। okay. दिस इज R1 जिसको हमने ओवरराइड कर दिया। अच्छा तो वो पुराना वाला क्या होगा फिर? Then what about that? सो दैट इज, सो दैट इज ओनली विद दीज टू ऑब्जेक्ट्स, जो पुराने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो पुराने प्रोटोटाइप को रेफर करेंगे, बट जो स्टूडेंट 5 और 6 जो होंगे वो नए। नए prototype को यस, student new dot prototype. यस, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ठीक है, चले, आई विल शेयर द लिंक, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। Okay, okay. इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। सो दिस इज हाउ द प्रोटोटाइपिकल थिंग्स वर्क्स, एंड ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। सो सारी ऑप्टिमाइजेशंस के लिए एग्जिस्ट करता है और काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आई होप यू गाइस आर गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैन आई, शुड आई हैव ओनली फंक्शंस, और या फिर कुछ और भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ और भी हो सकता है। आप यहाँ पे कोई प्रिमिटिव वैल्यूज भी बना सकते हो, सो यू कैन से स्टूडेंट न्यू डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है, एंड यू कैन से दैट स्कूल नेम, ठीक है। सो ढेर सारे बच्चे हैं, सबके स्कूल नेम तो सेम ही होंगे मोस्टली, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ सिंगल स्कूल, तो you'll have the school name as something like this, ठीक है। तो you can have a primitive property also, ठीक है, not only method, so that is also possible, so just a quick refresh and check that out।
ठीक है. So all right. ठीक है, you can say school name and it is totally fine. ठीक है. So this is what we have. But let's say that examinations चल रहे हैं and some other school student is coming in your school to give exams and now you have to change in records. ठीक है. So कोई और किसी और स्कूल के बंदे आ गए and you have to change the records now. So can I do this? Can I have same property in prototype and same property in object? ऐसा हो सकता है क्या? Is it possible? See, let's see this. सो यस, दिस इज परफेक्टली पॉसिबल. ठीक है. तो आप सेम नेम की प्रॉपर्टीज प्रोटोटाइप में भी रख सकते हो और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में भी रख सकते हो. ठीक है. सो इफ यू ओपन ए स्टूडेंट फोर, तो आपके पास एक स्कूल नेम वाली प्रॉपर्टी है, बट इट डजेंट मीन दैट कि सारे ऑब्जेक्ट्स के पास होगी. शुड फाइव एग्जिस्ट? नहीं. स्टूडेंट थ्री. ओके. यू कैन सी दैट स्टूडेंट थ्री के पास स्कूल नेम नहीं है, बट स्टूडेंट थ्री का स्कूल नेम जो है वो कहाँ से आ रहा है? प्रोटोटाइप से आ रहा है. और स्टूडेंट फोर का स्कूल नेम, स्टूडेंट 4 का स्कूल नेम पीपीएस है. सो वो उसके खुद के प्रॉपर्टी से आ रहा है, राइट? या उसके खुद के प्रॉपर्टी से आ रहा है. ठीक है. तो प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस तभी होगी वन इफ यू डू नॉट फाइंड योर प्रॉपर्टीज. अगर आपको इसमें नहीं मिला तभी आप ऊपर सर्च करोगे. द सेम कॉन्सेप्ट वो पेरेंट और डराइव्ड क्लास वाला कि मेथड मिल गया तो सही है, नहीं तो फिर वो ऊपर चेक करेगा. ठीक है. ऑल राइट. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? सो डंडर प्रोटो. ठीक है. अच्छा, सो दिस इज डिस्करेज्ड क्योंकि डंडर प्रोटो हम यूज नहीं करते हैं. तो व्हाट टू यूज, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. सो सिंस ऑब्जेक्ट डॉट assign, we already know to create a new uh, object. Then we have get prototype of. Okay, so this is a function which requires an object and argument. Okay, so just apply the argument over here. You can say that a student 3 and it will throw you the basically whatever prototype is. Okay, so instead of using student 3 dot dunder proto, you can say object dot get prototype of student 3 and you will get the prototype. And that's the same as saying student new dot prototype. So this is the same thing. ठीक है. तो आप डंडर प्रोटो की जगह पे ये यूज करना है आपको from now on. Now, since we are talking about prototype, I want to show you something else. This, so okay, what is this capital O object? ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है, राइट? दिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन. जैसे वही है ना, लेट या ओके. लेट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, फिर आपने कॉल करा उसको. ठीक है. तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही, मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर फंक्शन है. ठीक है. सो सिंस दिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, तो आपने कहा कि इफ आई से ऑब्जेक्ट, तो ओके, माय स्टेटमेंट इज फंक्शन के पास प्रोटोटाइप है और ऑब्जेक्ट के पास भी प्रोटोटाइप है. तो क्या इस ऑब्जेक्ट के पास भी प्रोटोटाइप है सिंस इट इज अ फंक्शन? ठीक है. यस, इसके पास भी प्रोटोटाइप है. एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल प्रोटोटाइप. ये जो प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, दिस इज द हाईएस्ट लेवल प्रोटोटाइप. इसके ऊपर कोई प्रोटोटाइप नहीं होता है. ठीक है. सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल प्रोटोटाइप. तो कुछ ऐसा चेन सिस्टम है. सो ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट. सी, तो ये रहा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो दिस इज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये स्टूडेंट वन, ये स्टूडेंट टू. ठीक है. their prototype is basically the student new prototype. ठीक है. student new dot prototype. इस प्रोटोटाइप का एक और प्रोटोटाइप है, दैट इज द फाइनल प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप. ठीक है. सो दिस इज द सीन. सीन क्या है? सो सीन इज बेसिकली दिस इज योर ऑब्जेक्ट. इफ प्रॉपर्टी इज हियर, गुड. नहीं तो अपने प्रोटोटाइप में देखेगा. अगर यहाँ भी नहीं मिला तो फिर ये ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप में देखेगा. मेक सेंस? यस. या ठीक है. कमिंग बैक. So it's okay. This is called as um, we call this as look up the chain. Look up
happens up the chain. ठीक है, so lookup happens, property lookup happens up the chain. Okay, so all right, every time two objects are created when we create a function, तो ऑब्जेक्ट बनता है, उसका प्रोटोटाइप बनता है, कंस्ट्रक्टर विद जस्ट प्रोटोटाइप. शेयर मेंबर फंक्शन, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं. शेयर मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स, प्रॉपर्टीज एंड अमंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट हैव एक्सेस हैव रेफरेंस टू देयर प्रोटोटाइप. ठीक है, डंडर प्रोटो ऐड प्रोटोटाइप एट रन टाइम. रन टाइम का मतलब होगा इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज डन यू कैन असाइन समथिंग टू प्रोटोटाइप. ठीक है, आप देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी आप ये काम कर पा रहे हो. दैट इज नॉट समथिंग विच इज पॉसिबल इन अदर लैंग्वेजेस. ठीक है, आप ये नहीं कर सकते. ठीक है, कि आपने मतलब प्रोटोटाइप ही चेंज कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो सिमिलर टू स्टैटिक बिहेवियर इन अदर लैंग्वेजेस. सो व्हाट इज द स्टैटिक? ओके, व्हाट हैपेंस. ओके, डीएसएम हमने स्टैटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था. सो व्हेन वी से स्टैटिक, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? अगर मैं किसी फंक्शन को स्टैटिक बोलता हूँ या फिर प्रॉपर्टी को, सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? वो उस, It's part of the class. यस, वो They क्लास का. can ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए एक्सेस करने के लिए उसको. यस, करेक्ट. तो वो क्लास की प्रॉपर्टी बन जाती है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं रहती है. ठीक है, तो आपको हर बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट्स से जैसे मैंने स्कूल नेम वाली यहाँ पे बनाई है. सो इफ यू हैव अ क्लास स्कूल, सो यू कैन डायरेक्टली हैव अ स्कूल नेम स्टैटिक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू हमेशा ही डीपीएस होगी. ठीक है, तो यू कैन हैव दिस. सो फिर ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं रह जाती, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास इन जावा. ठीक है, तो कुछ इस तरह से सीन है, सिमिलर टू, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट सिमिलर. ठीक है, we have seen this. Okay, here comes this third question. How to know that कि ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी या फिर उसके प्रोटोटाइप से आ रही है? हाउ डज दिस हैपन? मतलब कि ठीक है, अगर मैं मेरे स्टूडेंट में, ठीक है, सो हियर्स द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टूडेंट 3. ठीक है, सो दिस इज स्टूडेंट 3. ठीक है, इस बंदे के पास प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, इसके पास गेट रोल नंबर भी है. ठीक है, सो दिस इज वन प्रॉपर्टी दिस गाय इज हैविंग. ठीक है, तो ये इसकी खुद की प्रॉपर्टीज है, बट ये इसकी खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है. हेयर्स व्हाट हैपेंस. जब भी स्टूडेंट 3 आता है, ठीक है, सो ऑलराइट, आई गेस सी पे मैथड चलेगा. सो हैज़ ओन प्रॉपर्टी, सो देयर इज अ फंक्शन हैज़ ओन प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी से मिलता है, और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग पास करनी होती है फॉर दैट प्रॉपर्टी. तो मैं चेक करता हूँ इज गेट रोल नंबर प्रॉपर्टी हैज़ ओन प्रॉपर्टी, तो ये दिस इज सेइंग फॉल्स. ठीक है, इज इट वर्किंग फॉर नेम? लेट्स चेक दैट. तो यस, ठीक है, इसकी वर्किंग क्लियर है. व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग. दिस स्टूडेंट 3 इज हैविंग 4 प्रॉपर्टीज, नेम, क्लास, रोल नंबर, गेट नेम. ठीक है, बट गेट रोल नंबर भी एक्सेस कर पा रहे हैं, बट ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, प्रोटोटाइप. यस. सो हैज ओन प्रॉपर्टी का काम क्या है? इट डिफाइंस लाइक उसकी खुद की प्रॉपर्टी है या इट्स अ प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी और फ्रॉम समवन एल्स. यस, सो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग कि ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, फिर कहीं और से आ रही है. सो वाइल आइटरेशन, ठीक है, जब आइटरेशन होती है फॉर इन लूप के हेल्प, सो फॉर इन, ठीक है, फॉर इन और फॉर ऑफ. ओके, सो फॉर लेट prop in student 3. ठीक है, ओके, सो दिस इन विल गिव मी एवरीथिंग आई हैव ओवर हियर. ठीक है, तो जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं सारे मुझे फॉरेन लूप से मिल जाएंगी, बट अपार्ट फ्रॉम फॉरेन लूप नो अदर थिंग विल गिव मी दीज द प्रॉपर्टी. मतलब कि सारी प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी मुझे. ठीक है, सो स्टूडेंट 3 अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई से स्टूडेंट 3, सो सिर्फ फॉर इन लूप विल गिव मी ऑल प्रॉपर्टीज, मतलब कि प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टीज और खुद की प्रॉपर्टीज. अपार्ट फ्रॉम दिस वन मुझे की से प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी, मुझे वैल्यू से प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी. सो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज भी है. ठीक है, विच विल सप्लाई मी द वैल्यूज.
And finally we have, ठीक है, सो जितनी है इन सब में से सिर्फ जितने इटरेटर्स हैं सिर्फ फॉर इन लूप ही हमें पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज देगी. ऑल बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज कैन हैव सेम प्रॉपर्टी. स्कूल नेम के केस में हमने देखा अभी ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन. सो ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन. ओके, व्हाई डिड आई रेट दिस. अच्छा ठीक है, सो कैपिटल ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन. सो बोल ही रहे लाइक वी बोल ही नहीं मतलब कि हमने यूज भी करा हुआ है ऑलरेडी. सो ठीक है, सो न्यू ओबीजे जब भी बनाना हो सो यू कैन से न्यू एंड यू कैन से ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन. बेसिकली एक कोई ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ही एट द एंड तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, बट टू बी मोर स्पेसिफिक दिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन. इसीलिए फंक्शन कॉल वाली डब्बा लगा है यहाँ पे. The brackets are there. Okay, so it means that it is a function. All right, can I take the type of, so type of capital object. Okay, prototype chain. Every prototype has reference to object or prototype. Every prototype over here has a reference to object or prototype. Lookup happens up the chain. ठीक है, so lookup happen होती है up the chain. ठीक है, and ब्राउजर स्टोरेज एपीआई. अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं हमारा. ओके, विल सी दैट लेटर. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड कैपिटल ऑब्जेक्ट. मतलब कि इंग्लिश के डिफरेंस से अलावा दो और मतलब कि कुछ और डिफरेंसेस हैं. सो बेसिकली व्हेन यू से कैपिटल ऑब्जेक्ट मेंशनिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, व्हेन यू से स्मॉल ऑब्जेक्ट यू आर बेसिकली सेइंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू पेयर्स. ठीक है, सो की वैल्यू पेयर्स जस्ट वी स्टडीड इन द डेटा टाइप की ऑब्जेक्ट होती हैं की वैल्यू पेयर्स एंड द कंस्ट्रक्टर फंक्शन. सो दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट थिंग्स इन ओवर. ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू समथिंग इंटरेस्टिंग जो कि हमें मतलब हम बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई वी आर सेइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बट क्लास की बात ही नहीं हो रही. लाइक डू वी रियली हैव क्लास या फिर ऐसे ही मतलब फंक्शन ही काम हो रहा है. सो यस, वी डू हैव क्लास. ठीक है, एंड टू मेक आवर लाइफ अ बिट इजियर. ठीक है, देखते हैं. So I'll quickly create a classes in js.html. All right. So class technique like this is syntax. ठीक है. Should I take help of VS Code? ठीक है. Let me write complete class. So student. ठीक है. So student and you can say something like this. ठीक है. And now you can say that this dot name is equals to. Do I need to do this or I can simply not need this? Okay, we do not need this anyways. It doesn't matter because since when I mention class, it means that कि I'm creating. ठीक है, क्लास में दिस तो हो गई, दैट इज फॉर श्योर. वो तो श्योरिटी है बिकॉज दूसरे लैंग्वेजेस में भी वो कह रहा है कि भाई क्लास आप बिना न्यू के कॉल ही नहीं कर पाओगे. इफ यू यूज न्यू तो दिस इज आप दिस लिखो चाहे मत लिखो, इट डजेंट मैटर. ठीक है, वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट यूज को एक्सेस कर पाएगा. तो दिस इज द लॉजिक और हम इसको अवॉइड करके सो जावास्क्रिप्ट जस्ट अवॉइड दिस. ठीक है, बिकॉज ठीक है लाइक यू गाइस नो. तो नेम कैन बी थिंग ओवर हेयर. फिर रोल नंबर हो सकता है. ठीक है, सो रोल नंबर हो सकता है. इट कैन बी अ नंबर इन ओवर हेयर. ठीक है, गुड थिंग इज आई हैव कंस्ट्रक्टर ऑल्सो. मेरे पास कंस्ट्रक्टर भी है. ठीक है, एंड which brings us feel. ठीक है, फील आता है कि ठीक है something like class is possible. कि I can say that ठीक है. Now here comes the point. ठीक है, so what is the difference between this name and this name? What's the difference? ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है. मतलब ये पैरामीटर है और ये क्लास की प्रॉपर्टी है, राइट? Yeah. ठीक है, तो सिंस इट्स अ क्लास प्रॉपर्टी आप इसको दिस डॉट नेम से एक्सेस कर सकते हो. ठीक है,
और सिंस रोल नंबर भी क्लास की प्रॉपर्टी है, सो एक्सेस विद हेल्प ऑफ नेम, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। तो कंस्ट्रक्टर मेरे पास प्रॉपर्टीज है, मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। नाउ आई हैव दिस। सो ड्यू टू ड्यू टू दीज थिंग्स, ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास, नाउ वी हैव द फीचर की हम चीज़ों को ले सकते हैं। सो नाउ वी कैन डिफाइन थिंग्स जैसा हमने ऑलरेडी देख रखा है। व्हाट अबाउट द मेथड्स? प्रॉपर्टीज तो देख ली हमने, मेथड्स का क्या सीन है? सो यू कैन सिंपली से गेट रोल नंबर, ठीक है, एंड यू कैन कॉल द मेथड। सो कुछ तो ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड है, लाइक आई एम नॉट राइटिंग एनी वेयर लेट कॉन्स्ट, और नहीं मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है ना। व्हाट्स द नीड? लाइक एट द एंड आप यही कह रहे हो ना कि प्रॉपर्टीज और फंक्शंस होने चाहिए, सो दिस द सेम थिंग। तो आप कह रहे हो कि गेट रोल नंबर है, एंड यू कैन पुट सो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। सो द रोल नंबर इज, ठीक है, I can say this start. Okay, so this is something what we have. Okay, and for the object creation part, so this goes the same way. You can say let student one is equals to new, and you can say student, and you can supply the name and the thing. Okay, so you can say name as ABC and rubber as study. So something like this is totally possible. Make sure कि new keyword use करें, otherwise it will throw an error, ठीक है। So it will be throwing error because this time we are going to use class, ठीक है। So I am using a class, ठीक है। तो new skip करके देखते हैं, ठीक है। So class constructor student cannot be invoked without, कह रहा है कि new के बिना हम class constructor को invoke नहीं कर सकते, ठीक है। So this is not possible in any sense. I can just okay, so I can just say this. I have to use this. ठीक है। Now since I have this over here, ठीक है, so this is good, and the next part is basically कि okay, we didn't see one thing. Let me have a quick refresh, ठीक है। So there is gone now student one. So what do we have the content? क्या function की problem solve हो रही है? So student one, ठीक है, and student two. Okay, so name and roll number is here. Okay, what is the property missing? कुछ तो missing है यहाँ से, क्या missing है? function constructor. सही बात है। सो आई एम मिसिंग दिस गेट रोल नंबर। फिर मैंने इसको प्रोटोटाइप को असाइन भी नहीं किया। आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, सी दिस, मैंने इसको प्रोटोटाइप को असाइन भी नहीं किया, एंड दिस इज अवेलेबल टू मी, सी। सो दिस इज हाउ क्लासेस आर मेकिंग आवर लाइफ इजी। गाइस ये सबको क्लियर हो रहा है? So what a class does is it automatically assigns these values to prototypes of these newly Yes. created objects. यस, ठीक है। सो वट एवर द मैथड्स आर देयर, सो इट इज स्मार्ट इनफ टू नो कि ये प्रोटोटाइप में जाएंगे, एंड वट एवर द दीज आर देयर, सो इट कैन जस्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्लियर है गाइस? Yeah. All right, this brings us to the next thing. This is a class, ठीक है, and similarly I have class expression, nothing fancy, ठीक है, same ही है, like say this and it makes the same thing, ठीक है। So either you just write class student or cons student equals to class, it the same thing, okay, doesn't matter। Second part, inheritance, making one more class, okay। So let's say school name, okay, school name is a property, okay, making it TPS or something, and
What else? Let's have a constructor, ठीक है, because we need to talk about something. So constructor रखते हैं, and this is a default value, ठीक है, let's keep it empty for now. And the constructor will accept the school name. Finally, we want to supply something like this. All right, this is good, ठीक है. How do okay, what is the keyword to use the inherited class? How to inherit a class? What's the keyword? जो जावा का है वही यहाँ पे भी है. What's that? That is extends, right? Uh, guys, remember this keyword? Whenever you want to like extend any class, like other class. Guys, ये clear हो रहा है क्या सबको? I'm sorry, can you repeat the point? Okay. So parent class, derived class, inheritance. So we have read inheritance in Java, right? So Yeah, we do. okay. So how to inherit the class? We use the extend keywords, right? Yeah. Okay. So that is the same thing. So I want to inherit this school class property. So I'm using a extend and the name. Okay. Is it Okay. clear? Okay. I will just show you one thing. So is this so it means that now these students are able to access the properties of a school also. Okay. That is what we mean by inheritance, right? Yeah. Okay. So and that is a one of the properties of object oriented programming language. Okay. So we have a issue over here, and that was intentional. Now you guys uh, tell me how what should I do to solve this? Must call super constructor in derived class before accessing this or returning from a derived constructor. What does the statement say? Must call super constructor. Do you guys remember this one? That when you derive a class, okay, so this is the thing, guys. You are creating object with of student class, okay, and you are extending properties of school. तो इसकी कंस्ट्रक्टर तो इनिशियलाइज होगी, बट इसकी कंस्ट्रक्टर तो इनिशियलाइज हुई नहीं ना. आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? इसको भी तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है. Okay. अदरवाइज व्हाट विल द वैल्यू ऑफ स्कूल नेम, ठीक है. तो हाउ टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर कीवर्ड, ठीक है. तो आप सुपर कीवर्ड से इसको करते हो, एंड देन यू डू समथिंग लाइक दिस. सो बिफोर यू इनिशियलाइज, whenever you initialize your constructor, you have to call this super keyword, ठीक है. क्योंकि स्टूडेंट की कंस्ट्रक्टर आपने एक्सप्लिसिटली कॉल करी 39 पे, बट यू हैव टू कॉल दिस कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, और वो आप करोगे सुपर से. एंड नाउ वी विल सी दैट स्कूल नेम इज accessible to us, ठीक है. सो लेट्स हैव अ क्विक रिफ्रेश, ठीक है. So student one, okay. So see, student one has the property, and student, not static range, student two has the property, okay. So this is how inheritance works. Make sense, guys? Okay. Okay. One more thing, since I'm talking about prototypical inheritance, now here's an interesting thing happened. This student prototype is pointing to school student dot underscore proto. It is pointing to the school. Okay, it means that student. Okay, this so student is this class. Okay, its prototype has become a school. Okay, so this is how prototypical inheritance work. क्या कहा था हमने कि अगर प्रॉपर्टी यहाँ नहीं मिलेगी तो इट विल लुक अप दी, Chain. ठीक है. सो दिस इज द चेन वन. सो स्कूल इज द लाइक चेन ऑफ द अपर चेन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है. तो हमने इसकी प्रोटोटाइप चेंज कर दी विद हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस. मेक सेंस, गाइस?
ठीक है। Yeah. एंड स्कूल की भी खुद की प्रोटोटाइप्स होंगी, ठीक है। तो स्कूल हैज ओन प्रोटोटाइप, दैट इज सेपरेट थिंग, ठीक है। बट यस, दिस इज हाउ इट। अच्छा, एक चीज़ समझ नहीं आ रही, व्हाट इज दिस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये बार बार दिख रहा है हमें। तो जब आप स्कूल डॉट प्रोटोटाइप बोलते हो ना, स्कूल से प्रोटोटाइप तक जाने का रास्ता स्कूल डॉट प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप से वापस स्कूल पे आने का रास्ता होता है कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये था टू वे काइंड ऑफ थिंग है, मतलब कि आ, कुछ ऐसा सीन है। सो स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप से आप यहाँ पे आते हो और प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर वाली प्रॉपर्टी से आप वापस चले आते हो। सो इट्स अ टू वे। मेक सेंस? Yeah. ओके। हम्म। सो okay, can't call a class without new keyword, correct? Class declaration is not hosting, so hosting की कोई concept नहीं है classes में, ठीक है। So just have this in mind, hosting नहीं है। Every object has reference to its prototype, जो कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखता है, ठीक है। बट उसको एक्सेस करने के तरीके हमने देख लिए ऑलरेडी, डंडर प्रोटोकॉल ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे करेगा, वो फंक्शन के पास खुद की डॉट प्रोटोटाइप होती है, तो चिल है, उसको करने की जरूरत नहीं है, उसके पास डॉट प्रोटोटाइप ऑलरेडी होती है। क्लास फंक्शंस आर एक्सप्रेशन आर नॉट होस्टेड, ठीक है, सही बात, मतलब रिपीटेड ही है। इनहेरिटेंस इन क्लास एंड सुपर कीवर्ड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी, जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, ठीक है। ओके, देयर इज समथिंग वी नीड टू सी, ठीक है। अब कुछ नया आने वाला है एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट, ठीक है, विल टॉक अबाउट टू थिंग्स गाइस, ठीक है। उससे पहले बात करें, लेट मी आस्क यू समथिंग। सो डू यू गाइस नो अबाउट थ्रेडिंग? थ्रेडिंग के बारे में पता है क्या सबको? No. ओके, सो एनी प्रोसेस रनिंग इन योर मशीन इज अ थ्रेड, ठीक है। सो एक सिंपल इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो होती है ना, उसको थ्रेड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कोई डेटा रीड राइट हो रही है, तो पेन ड्राइव आपने लगाया, डेटा रीड राइट हो रही है, तो दैट इज़ वन थ्रेड गोइंग ऑन, ठीक है। वो एक थ्रेड है। तो जितनी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन होती है वो थ्रेड होती है, ठीक है। मुझे कुछ कंसोल प्रिंट कराना है, तो दैट इज़ वन थ्रेड। मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो दैट इज़ अ सिंगल थ्रेड, मतलब कि वो एक थ्रेड है। जावा है सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। जावा के पास मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको धीरे धीरे लेके जाते हैं। सो ठीक है, थ्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देन विल कम टू सिंक्रोनस पार्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जावास्क्रिप्ट में कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जस्ट अ सेकंड गाइस। सो जावास्क्रिप्ट में कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है एंड, ठीक है, हियर इज समथिंग आई वांट यू गाइस टू सी। लेट मी टाइप सम कोड। सो ठीक है, कंसोल इज देयर, कंसोल डॉट लॉग इज देयर, ठीक है। एंड आई वांट टू टाइप वन। गाइस, क्लासेस से रिलेटेड, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हैं, राइट? आई गेस वी कैन प्रोसीड। Yeah, you can see. सो दिस इज कंसोल लॉग वन, ठीक है। नाउ सेट टाइम आउट, 10 सेकेंड का डिले, एंड कंसोल डॉट लॉग टू, कंसोल डॉट लॉग थ्री, ठीक है। सो वन टू एंड थ्री, सो दीज आर द थ्री थिंग्स वी आर हैविंग। अब सीन ये है कि लेट मी सबमिट दिस, व्हाई, ओके, नो यू डोंट नीड टू सबमिट दिस, वी नीड टू रन दिस, ठीक है। यू नीड टू लॉग, ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ऑलराइट, सो आई यूज्ड टू हैव मोर स्टार्स, बट ठीक है, इट्स ओके। Why is it black? But anyways, just let's see the output. So okay, what do you guys think? So what should be the output?
क्या आउटपुट होगा? 1, 2 and 3. 1 2 3. Okay, any other answers guys to your answer? 1, 3, 2. 1 3 2. Okay, Harshit, anything? Anything? Okay, let's see. ठीक है, so 1 3 2 is the answer. ठीक है, and just a simple definition कि दिस इज वेटिंग फॉर 10 मिली सेकेंड्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब कि सिंस लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है तो दिस इज वेटिंग फॉर 10 मिली सेकेंड्स. तो सिंस ये यहाँ तो पहुँच जाएगा बट वेट करेगा ना, टिल इट्स वेट ये यहाँ पे पहुँच जाएगा. मेक सेंस? आउटपुट क्लियर हुआ? Okay. ठीक है, ऑल राइट. जस्ट अ क्विक चेंज कि मैं इसको हटा के 0 डिले कर देता हूँ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड दिस सिंटेक्स इज कॉल्ड एज जीरो डिले सेट टाइम मोड. ऐसा लग रहा होगा कि भाई जब 0 मिली सेकेंड लिख रहे हैं तो फिर रहने दो ना, मतलब क्यों लिख रहे हैं फिर सेट टाइम मोड. ठीक है, सीरियस. व्हाट शुड बी द आउटपुट नाउ? 1, 2, 3. 1 2 3. Okay, everyone agrees with this? And no, it will be the same. It will be the same. ठीक है, तो थोड़ी दूसरी मत है यहाँ पे. देख, Time is 0, right? Then it shouldn't take, right? करेक्ट, यू आर ऑन द परफेक्ट ट्रैक. ठीक है, वो बहुत सही सोच रहे हो आप. ठीक है, उसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी. सो लेट मी रन दिस. इट शुड डू 1 2 3, बट ठीक है ऐसा होता नहीं है. दैट इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, सो 1 3 2 इज द आंसर इवन विद जीरो डिले सेट टाइम. पॉइंट इज कि सिंस इट इज रनिंग लाइन बाय लाइन, उसमें कोई शक नहीं है, दैट इज इट इज गोइंग लाइन बाय लाइन. ठीक है, सो दैट इज टोटली परफेक्ट. ठीक है, वो सही जा रहा है. The change is कि some of the functions are classified as potential blocking function. कुछ functions होते हैं जो potential blocking capacity रखते हैं. मतलब कि अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, 10 मिली सेकेंड इफ इट इज देयर तो चिल है. ठीक है, सो बट व्हाट इफ आई हैव 20 सेकेंड. ठीक है, जैसे कि हमारा पहला आंसर था कि 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए इवन देर इज अ डिले अपार्ट फ्रॉम जीरो ना हो तो भी. ठीक है, मेक सेंस, बिल्कुल सही. मतलब फर्स्ट रियलाइजेशन अगर वो है तो दैट इज परफेक्ट बिकॉज वही है, राइट. बट द थिंग इज कि इजंट इट ब्लॉकिंग द थिंग. ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं 20 सेकेंड के लिए ब्लॉक. मतलब यू गाइस सी द, Yeah, ठीक है, trying to delay 20 seconds. ठीक है, सो दिस इज ब्लॉकिंग द थिंग. दिस इज वन एग्जाम्पल. ऐसा हो नेटवर्क कॉल हो एंड यू आर रिक्वेस्टिंग सम डेटा फ्रॉम सर्वर और उस फाइल का साइज है 4.2 GB. लेट से यू आर डाउनलोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो उसकी उसकी कोई साइज है. ठीक है, जावास्क्रिप्ट से आप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज टोटली पॉसिबल. विल सी दैट ऑल्सो. सो some of the task we cannot wait for those tasks to complete. ठीक है, हम उस टास्क के लिए अपने मतलब हम वेट नहीं कर सकते. वी कैनॉट लेट इट ब्लॉक आर एग्जीक्यूशन. फर्स्ट पॉइंट, block our execution, like how it can block the execution we just saw. ठीक है, कि अगर 20 सेकंड बोलेंगे तो इट कैन ब्लॉक द एग्जीक्यूशन. सो वी डू नॉट ब्लॉक आवर एग्जीक्यूशन. इसीलिए जावास्क्रिप्ट इज अ नॉन ब्लॉकिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पे कोई नॉन ब्लॉकिंग कोड नहीं होता, कोई आपके कोड को नहीं ब्लॉक करेगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज कि इट इज सिंगल थ्रेड. सिंगल थ्रेड, व्हाट डू आई मीन बाय सिंगल थ्रेड? दैट इज अ क्वेश्चन. पॉइंट इज एक बार में एक ही प्रोसेस रन करेगी. सो देयर इज ओनली वन प्रोसेस विच विल रन इन 1 सेकेंड. हाउ डू यू नो दिस? ठीक है, हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस? बिकॉज अगर आप देखो सो देयर इज अ 0 मिली सेकेंड डिले. सो व्हेन इट रीचेस, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये पहले नहीं प्रिंट हो रहा है. ठीक है, बिकॉज इट्स अ पोटेंशियल ब्लॉकिंग फंक्शन. दैट इज आई एम कूल विद दैट वन. ठीक है, बट ये भी तो हो सकता है ना कि व्हेन सेट टाइम आउट ओके, सो व्हेन इट रीचेस लाइन नंबर 11, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये डिले जीरो डिले मतलब खत्म हो गया. तो रेस केस भी तो आ सकती है ना कि कंसोल 2 प्रिंट करेंगे, कंसोल 3 प्रिंट करें. हाँ. ओके, रेस केस आ सकती है बिल्कुल. और सिंस वी कैनॉट डू बोथ,
बिकॉज आई एम सेइंग दैट कि सिंगल थ्रेडेड है. सिंगल थ्रेड मतलब कि एक ही प्रोसेस एक बार में एक ही चीज चलेगी, या तो कंसोल 2 होगा नहीं तो कंसोल 3 हो. सो सिंगल थ्रेड है तो इससे एक चीज तो श्योर है कि डेडलॉक की केस नहीं आने वाली है कभी जावास्क्रिप्ट में. डेडलॉक क्यों नहीं आएगा? डेडलॉक तब आता है जब मोर देन वन फंक्शंस आर वेटिंग फॉर द सेम रिसोर्स. ठीक है, सो ढेर सारे फंक्शंस आर वेटिंग फॉर द सेम रिसोर्स. मतलब कि कैमरा का वेट करे, लेट्स से 4 फंक्शंस आर देयर एंड बोथ आर वेटिंग फॉर द कैमरा, बट लेट्स से तो फिर चारों को नहीं मिलेगा बिकॉज एवरीवन इज वेटिंग फॉर अदर टू फ्री. ऐसा कोई सीन ही नहीं है, वो तो हमें सोचना नहीं है यहाँ पे बिकॉज इट्स सिंगल थ्रेडेड. सो दैट मीन्स दैट कि कुछ अलग एग्जीक्यूशन है. अब ठीक है, लाइन नंबर 9 पे आया, ये नहीं चला. इट केम टू लाइन नंबर 11 और ये चला, फिर बाद में ये चला. हाउ डज जावास्क्रिप्ट नो कि इसको बाद में चलाना है? वो तो यहाँ पे आ गया ना, वो तो आगे बढ़ गया. मे बी कॉल स्टैक में वेट कर रहा होगा फंक्शन. ओके, सो फंक्शन शुड बी वेटिंग इन द कॉल स्टैक. दैट इज वन थिंग. ठीक है, वेट कर रहा है. ठीक है, देखते हैं कहाँ पे वेट कर रहा है. बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, आप बताओ हाउ मेनी फंक्शंस आर एट लाइन नंबर 9? कितने फंक्शंस हैं? दो. तो ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस? सेट टाइम आउट एंड कंसोल लॉग. ठीक है, सेट टाइम आउट और कॉल बैक. ठीक है, कॉल बैक. मेक सेंस. ठीक है, कंसोल लॉग इज अ फंक्शन. ठीक है, आई एग्री विद दैट. बट मतलब कि ये फंक्शन जो है मतलब है रैपर है, राइट? या ओके. ठीक है. सो ओके 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 ठीक है. सो हेज द पॉइंट गाइस. तो कैसे काम कर रहा है? सिंक्रोनस है. सिंक्रोनस मतलब कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा और वही कर रहा है. तो दिस स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड. ये तो जस्टिफाइड है, ठीक है, कि ये नॉन ब्लॉकिंग है एंड डज नॉट वेट फॉर समवन. तो ये तो सिंक्रोनसली काम कर रहा है. बट what about asynchronous functions? Set timeout, set interval, network call, database call. क्या करेंगे उस टाइम पे? We will wait. Let's say we are querying for a data with 10,000 data. So am I going to wait for all those 10,000 data? नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो फिर काम कैसे होगा? सो हाउ डज इट फंक्शन? ठीक है, तो सेट टाइम आउट में तो देखा दो फंक्शंस है. ठीक है, सो हाउ डज इट हैपन? वन थ्योरी इज टू वेट इन द कॉल स्टैक. ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट ने देखा कि ये फंक्शन जो है वो ब्लॉकिंग है, तो इसको कॉल स्टैक में ही छोड़ दो, वेट कराओ. ठीक है, सो कंसोल लॉग 1. ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली. एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ठीक है, कॉन्स 2 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है. लेट्स से 0 मिली सेकेंड डिले. ठीक है, इसको 10 मिली सेकेंड डिले करते हैं. ठीक है, 0 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बाद में डिस्कस करेंगे उसको. एंड फाइनली द कंसोल लॉग 3. सो कंसोल 3, कंसोल 1 2 3. ठीक है, here is the key. There is something. ठीक है, there is something called as event loop. ठीक है, so we call that as event loop. This is a loop. Event loop. Here's the point. This is the call stack. ठीक है, call stack. ठीक है, this is browser. There's a queue. Okay, so event queue call stack browser console log 1. ठीक है, console log 1 है. Okay, sorry. Whenever a function is running, that we know that कि ये आएगा सबसे पहले call stack में. Okay, this is good. ठीक है, console log 1 आया, it came here, it get popped out. ठीक है, ओके, सेट टाइम आउट आया कॉल स्टैक में. ठीक है, सेट टाइम आउट आया और उसने रन कराई अपनी फंक्शंस को. जैसे ही जावास्क्रिप्ट सीज की दिस कॉल स्टैक हैज अ सेट टाइम आउट. ठीक है, जैसे ही जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि यहाँ पे सेट टाइम आउट है. ठीक है, व्हाट इट डज इज इट पॉप्स दिस फंक्शन आउट और वो इसको ब्राउजर में भेज देता है. ठीक है, और से दैट वेब एपीआई में भेज देता है. ठीक है, इट सेंड्स दिस सेट टाइम आउट इनटू द वेब एपीआई.
अब व्हाट इज वेब एपीआई एंड व्हाई डिडंट इट हैंडल्ड कंसोल लॉग, जैसे कंसोल को हैंडल करा था, क्यों नहीं इसने सेट टाइम आउट को हैंडल किया? सी, सेट टाइम आउट नीड अ टाइमर, ठीक है, उसको टाइमर चाहिए, तो कहीं से तो टाइमर आएगा ना, मतलब उसके पास तो खुद का टाइमर तो है नहीं, तो वेयर दिस टाइमर इज कमिंग फ्रॉम? सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द सिस्टम, तो ये सिस्टम इसको टाइमर देता है, एंड सिंस इसको सिस्टम टाइमर देता है, मतलब कि हमारे सिस्टम के टाइम से ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो दिस 10 सेकेंड डिले यू सी ना, इट इज नॉट इन द कॉल स्टैक, ठीक है, सही बात है, वेट करता है, बट यहाँ नहीं वेट करता, ये 10 मिली सेकेंड वाली जो डिले है, ये ब्राउजर में ही वेट करता है, वेब एपीआई से वेट कराता है, ठीक है। वंस दिस इज डन, तो फिर ये क्या करता है, सेट टाइम आउट इज गॉन एंड इट प्लेसेस द कॉल बैक, जो उसका कंसोल 2 प्रिंट कराने का था, इट प्लेसेस इन अ क्यू, वी कॉल दैट क्यू एज अ event queue. Are you guys getting this point? Yeah. ठीक है, सो जस्ट नो दिस कि सेट डेमो यहाँ है, इट सीज कि दिस इज एसिंग फंक्शन, इट सेंड टू द ब्राउजर कि लेट प्लीज हैंडल दिस, इसने डिले का वेट करा ब्राउजर ने, वंस द डिले वाज डन, इट प्लेस द कॉल बैक इनसाइड द कॉल बैक क्यू, ठीक है। देन कम दी थर्ड कंसोल विच इज C3, ठीक है, ये यहाँ पे आया, ठीक है, इट गॉट पॉप्ड आउट, ठीक है। इस प्रोसेस के होते टाइम कॉल स्टैक डज नॉट वेट, ठीक है, सो ये जब ये डिले हो रहा है या फिर कॉल बैक इज बीइंग इंसर्टेड, सो हमारे जावास्क्रिप्ट को मतलब नहीं है, बिकॉज इट इज सिंगल थ्रेडेड, सो उसका काम है लाइन बाय लाइन टू एग्जीक्यूट कोड, सो टिल दीज थिंग्स वर हैपनिंग, इट, ठीक है, ये डिले एंड ऑल दोज थिंग्स, ये ठीक है, तो भी प्रोसेस था, इट टुक दिस कंसोल 3 कॉल स्टैक, पॉप कराया, प्रिंट कराया, फाइनली वंस दिस वाज डन, ठीक है, जब ये हो गया, तो दिस इवेंट लूप हैज अ लूप वाइल, ठीक है, लूप है तो लूप ही है, ठीक है, सो इम्प्लीमेंटेशन इज लूप, दिस चेक्स कॉल स्टैक, ठीक है, कॉल स्टैक, ठीक है, okay, is there a condition, is there a condition, okay, so what's this condition, ठीक है, वेल, सो बट हाँ, इस पे कंडीशन है कि इफ कॉल स्टैक डॉट एम्प्टी, इसने कहा कि कॉल स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, ये कह रहा है कि खाली है, अगर खाली है देन पॉप दिस फ्रॉम द इवेंट क्यू एंड पुट इट हियर, बट ओनली व्हेन इफ दिस इज एम्प्टी, तो इवेंट लूप कीप्स चेकिंग द कॉल स्टैक, अगर खाली होगा तो यहाँ से पॉप करेगा, यहाँ पुश करेगा, ठीक है, और इट विल बी पॉप्ड आउट। So this explains why our output was 132 in all cases, even if it is zero delay, ठीक है, even if it is zero delay, ये यहीं पे आएगा, तो जीरो डिले वेट करेगा बट कॉल बैक में जाएगा, सो हु मेक्स इट वेट, सो इवेंट लूप मेक्स इट वेट, वो उसको जाने नहीं देगा until and unless कॉल स्टैक इज empty, Clear. Empty. ठीक है, सो जब तक कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होगी नथिंग विल गो, कॉल स्टैक एम्प्टी है नहीं बिकॉज वी हैव कंसोल लॉग 3, so till it gets empty, console log 2 has to wait over here, क्योंकि console log 2 के ऊपर set timeout था, it's not a normal function, it's a callback, callback's a normal function but it's a callback, ठीक है, so this is why callbacks were important when we studied it in the first place. So this keeps on going, ठीक है, this loops keeps on going, ठीक है, till our functions are running, जब तक हमारे रन टाइम चल रहे हैं तब तक ये चलते रहते हैं, ठीक है, and JavaScript manages async operation with help of callbacks, इसीलिए जितने async ऑपरेशन है सारे के सारे कॉलबैक्स लेते हैं, अगर आपको याद हो सेट इंटरवल में भी कॉलबैक जाता है, रिमेंबर दिस, इसमें कॉल बैक जाता है. सेट इंटरवल, Oh, set interval. ठीक है, एंड द सेम थिंग विद इवेंट लिसनर्स आल्सो, Yeah, listeners as well. ठीक है, so this is our event loop guys, and this is how async thing is managed, ठीक है, so this is what we had, we'll discuss in more detail in the next session, ठीक है, but
ठीक है. So this is what we are at. So let's meet the same day tomorrow. Okay, but before that, attendance. Okay, guys, how are the lectures? मतलब lectures सही जा रहे हैं ना? Like any improvements or anything? नहीं सही जा रहा है. Okay. Yeah, it's all going good, man. Okay. See ya. ठीक है. So we'll be moving to client server tomorrow. Sure. Okay. Please mark the attendance and let's meet tomorrow. All right, guys. Bye. Yeah, bye.